أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر سسٹر، یہ آج ہماری ایڈوانس اردو کی پہلی کلاس ہے جس میں ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سبھی توجہ سے سمجھ لے، پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ کو ایک سبق سمجھایا جائے گا، اس کے ہارڈ ورڈز کی میننگ آپ کو بتایا جائے گا۔ سبق کو دھیان سے سننا ہے، جو مشکل ورڈز ہے آپ کو اس کی میننگ بتائی جائے گی، اور اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشچنز کے آنسرز آپ نے خود لکھنا ہے۔ اس لیے امید کرتی ہوں کہ سبھی سسٹر توجہ سے سبق کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور پھر سبق سمجھنے کے بعد کوشش کریں گے کہ سوالات کے جوابات دیں۔ چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا لیسن ہے، اور لیسن کا عنوان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سبھی، اور اینڈنگ میں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اس سے متعلق آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، تو دھیان سے سنیں گے۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ہے نا۔ ہمارے نبی، یہاں پر ہمارے نبی کی سیرت کے بارے میں بتایا گیا، ان کے بارے میں آپ کو معلومات دی گئی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی، ہے نا، ہمارے نبی سے پہلے دنیا میں 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، اور ہمارے نبی آخری ہے، خاتم النبی ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے ہمارے نبی ہم سب کے نبی ہے۔ تو پھر ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ پہلے تو دیکھیں نبی کیا ہوتے ہیں۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ جو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو لاتے ہیں، ہے نا۔ تو جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، یہ انبیاء اکرام ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی کون ہیں؟ جیسے عیسائی جو مذہب ہوتے ہیں، ہاں، تو ان کے نبی کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، ہے نا۔ اسی طریقے سے پھر ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اب یہ ہمارے نبی کے بارے میں آپ کو پوری معلومات یہاں پر دی گئی ہے، آپ نے وہ معلومات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے، ہاں۔ اور مکہ کیا ہے؟ دیکھیں مکہ کیا ہے؟ عرب دیش کا ایک مشہور شہر ہے۔ تو ملک کون سا ہوا؟ ہمارے نبی جس ملک میں پیدا ہوئے وہ کیا ہے؟ عرب ہے۔ اور عرب کی کون سے شہر میں ہمارے نبی پیدا ہوئے؟ تو مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ عرب دیش میں بہت سے خاندان تھے، ہے نا، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں خاندان، ویسے ہی عرب دیش میں پہلے دیکھیں قبیلے، خاندان یہ بہت مشہور ہوا کرتے تھے۔ تو عرب دیش میں بہت سے خاندان تھے، سب سے عزیز، ہے نا، عزت والا خاندان قریش کا تھا۔ سب سے عزیز، سب سے عزت والا، سب سے مشہور معروف خاندان کون سا تھا؟ قریش کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے۔ تو آپ کو یہاں پر سوال بھی آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تھے؟ تو آپ نے جواب میں لکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے۔ یہاں پر سمجھ میں آیا آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی کا خاندان کون سا تھا؟ تو قریش تھا۔ آپ کے ابا کا نام عبداللہ تھا، اور امی کا نام آمینہ تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ اور امی کا نام آمینہ تھا، اور دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ دیکھیں اس جو عرب تھا وہاں پر رواج تھا کہ دودھ دائیاں رکھی جاتی تھی، دیکھیں دودھ پلانے والی، ہاں، یا جو بھی مسئلہ تھا اس وقت، ہے نا، ماؤں کو دودھ اگر کم ہوتا یا جو بھی ہوتا تھی دقت، تو اس لیے وہاں پر دائیاں رکھی جاتی تھی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے نبی کے دائی کا نام کیا تھا؟ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو ان کا نام تھا دائی حلیمہ۔ ان کا نام یاد رکھنا ہے آپ نے، ان کا نام تھا دائی حلیمہ۔
आपके पैदा होने से पहले ही आपके अब्बा का इंतकाल हो गया था। देखिए, है ना? हमारे नबी जब पैदा हुए थे उस वक़्त उनके अब्बा का इंतकाल हो चुका था, है ना? तो देखो हमारे नबी जब पैदा हुए, देखो इतने बड़े है ना नबी है हमारे, तो बोलते हैं ना जिससे अल्लाह प्यार करता है उसी आजमाइश में डालता है, उसी से उन्हें उनके मतलब उन पर उन्हें चेक करता है, मतलब उनके ईमान को उसी तरीके से आजकल कैसे करते हैं कि अगर किसी पर मुसीबत आती है, वो दीन से जुड़ा है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इतने दिन से जुड़े हैं फिर भी हम पर इतनी मुसीबतें आ रही है ना? ऐसे करते हैं, ईमान डगमगाता है। तो ऐसे नहीं होने देना चाहिए। तो देखिए वो नबी होने के बावजूद भी क्या है, उन पर कितने सारे मुसीबतें, कितने सारे आज़माइशें आती हैं, आप देखेंगे आगे-आगे। तो फिर जब आप पैदा हुए तो आपके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। और जब आप 6 बरस के हुए तो आपकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। देखिए सोचिए ज़रा, आज है ना 6 साल का बच्चा कितना मतलब कितनी ज़रूरत होती है उसको माँ की, है ना? तो फिर देखिए जब हमारे नबी 6 साल की ही हो गए, तो उस वक़्त क्या हो गया, उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। इसी तरीके से हमारे नबी पर आने वाली आज़माइशों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि उनकी ज़िंदगी में कौन-कौन से हादसात, कौन-कौन से वाक़यात आए, वो यहाँ पर आपको बताए जाएँगे। फिर जब 6 साल की उम्र में अम्मी का भी इंतकाल हो गया, तो फिर आपकी परवरिश किसने किसने की? स्टेप बाय स्टेप सब याद रखेंगे आप। पहले तो देखिए जब पैदा हुए हमारे नबी, तो उस वक़्त उनके अब्बा का इंतकाल हो चुका था, है ना? तो फिर जब और 6 साल के होते हैं तो तब उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। और जब 6 साल के बाद फिर आपकी परवरिश किसने की? आपको पाल-पोस कर किसने बड़ा किया? आपके दादा ने। फिर दादा ने आपको पाला-पोसा और 8 साल के हुए तो दादा भी इंतकाल कर गए और मर गए। तो देखिए 6 साल की उम्र में किसका इंतकाल हो गया? अम्मी का। पैदा होने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी के अब्बू अब्बू का इंतकाल हो गया। और जब पैदा हुए 6 साल के बाद उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। फिर 8 साल के जब होते हैं तो उनके दादा का भी इंतकाल हो गया। फिर चचा अबू तालिब, देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, चचा अबू तालिब ने पाला। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपने याद रखना है। चचा ने बड़ी मेहनत से पाला, हमेशा आपको अपने साथ रखते थे। तो यहाँ पर देखिए चाचा की मोहब्बत, शफ़क़त भी आपको यहाँ पर दिखाई देती है कि अबू तालिब जो कैसे थे, बहुत अच्छे किरदार के मालिक थे और उन्होंने क्या किया, बड़ी मोहब्बत से नबी को पाला, यानी भाई का बेटा, है ना? तो फिर बड़ी मोहब्बत से पाला और हमेशा उनको अपने साथ रखते थे। प्यारे नबी बचपन ही से बड़े सच्चे थे, सब लोग आपको सादिक कहते थे। सुभान अल्लाह। देखिए प्यारे नबी क्या थे, हमारे नबी कैसे थे बचपन ही से, है ना? ऐसे नहीं कि कोई शरारतें करते थे या कुछ और करते थे, झूठ बात करते थे, ऐसे नहीं। बचपन में ही वो खूबियाँ से भरे हुए थे। तो बचपन ही से हमारे नबी कैसे थे? बचपन ही से सच्चे थे। सब लोग आपको सादिक कहते हैं। देखो ये सादिक क्या है? लक़ब है। लक़ब यानी क्या? अगर किसी इंसान में कोई अगर क्वालिटी होती है, कोई ख़ासियत होती है, कोई ख़ास बात होती है, तो उसको वो लक़ब दिया जाता है, यानी एक नाम होता है ना लक़ब कि उसमें वो बात है। तो उसी तरीके से जब हमारे नबी सच्चे थे तो लोगों ने उन्हें क्या कहा? सादिक कहा, है ना? जो सच्चा होता है उसे सादिक कहते हैं। तो प्यारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बड़े सच्चे थे, तो सब लोग आपको सादिक कहते थे। आप बड़े अमानतदार थे। अमानतदार यानी क्या? देखो अमानतदार की मीनिंग समझ कर लेते हैं पहले। अमानतदार यानी किसी कोई आपको कोई चीज़ देता है, तो आप उसमें ख़यानत नहीं करेंगे, यानी उसमें से कुछ हिस्सा नहीं लेंगे या उसमें उसको यूज़ नहीं करेंगे। जो आपके पास कोई चीज़ देता है, उसी हालत में वो चीज़ उसको लौटाना। समझ आ रहा है? देखिए किसी की चीज़ की हिफ़ाज़त करना, अगर कोई आपको कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी पर्स है, आप 2 दिन के लिए रखें, तो आपने उसमें ख़यानत नहीं करनी। आपने ये नहीं सोचना कि मैं देखूँ इसमें क्या है, क्या नहीं, या इसमें से कुछ लूँ या इसको कुछ बिगाड़ दूँ, ऐसे नहीं। जिस हालत में वो इंसान आपको वो देता है पर्स, तो उस हालत में उसको लौटाना। तो इसे कहते हैं अमानतदार होना, यानी उस चीज़ की हिफ़ाज़त करना। हुँ? और जिस तरीके से आपको वो चीज़ मिली थी उसी तरीके से वो चीज़ लौटाना। जो ऐसा शख्स होता है उसको अमानतदार कहते हैं। और सब लोग इस ख़ासियत की वजह से, अमानतदार की जो आप में क्वालिटी थी उसकी वजह से आपको क्या कहते थे? आमीन कहते थे। तो आमीन क्या हो गया? ये लक़ब। पहला लक़ब कौन-सा था? देखिए सादिक का। सच्चे थे तो आपको लोग सादिक कहते थे। आप अमानतदार थे तो आपको लोग आमीन कहते थे।
हाँ, ये दोनों भी क्या है लक़ब, सादिक और आमीन, ये क्या है लक़ब है। तो अब हम उर्दू का फर्स्ट क्लास है, एडवांस का है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी हार्ड वर्ड होंगे, जो भी इसके बाद भी जो मैं समझा रही हूँ, इसके बाद भी आपको अगर कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे क्लास के बाद पूछ सकते हैं, हाँ? तो देखिए सादिक किसको कहते हैं? जो बड़ा सच्चा होता है और अमीन किसको कहते हैं? जो अमानतदार होता है। अमानतदार यानी कि किसी की चीज़ में ख़यानत न करना, दिल न डालना किसी चीज़ में। किसी दूसरे की चीज़ में। सब आपकी इज़्ज़त करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब लोग क्या करते थे? इज़्ज़त करते थे। जब आप जवान हुए तो बीबी खदीजा से आप जब आप जवान हुए तो बीबी खदीजा से आप शादी कर लिया आपने। तो आपकी पहली बीवी, है ना? देखिए हमारे अरबी में भी क्लास चल रहा है उम्महातुल मोमिनीन का, तो उसमें भी हमने देखा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का किरदार किस तरीके से बेहतरीन है। तो आपकी जो पहली शादी हुई तो किससे हुई? ये भी सवाल आपको इस तरीके से आ सकता है कि हमारे नबी की पहली शादी किससे हुई? तो आपने आंसर में लिखना है बीबी खदीजा से। तो आपकी पहली शादी हुई। तो बीबी खतीजा कैसी थी? देखिए बड़ी नेक औरत थी। बीबी खतीजा बड़ी नेक थी। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ने आपको नबी बनाया। देखिए नबूवत का शर्फ आपको कब मिला? किस उम्र में मिला? 40 साल तक, 40वें बरस में। जब आप 40 साल के हुए तब अल्लाह ताला ने आपको क्या किया? नबूवत दी। आप पर कुरान उतारा। उससे पहले की ज़िंदगी आपकी आम थी मतलब ये नहीं कि हम जैसी थी, है ना? शरारती ये वो ऐसे नहीं, आप बचपन ही से कैसे थे देखिए ऊपर हमारा गुज़र चुका है पैराग्राफ में कि आप बचपन ही से कैसे थे, सच्चे थे, अमानतदार थे, ये सारी क्वालिटीज़ आप में बचपन ही से थी। और फिर आपको नबूवत का शर्फ़ कब हासिल हुआ? आप जब 40 बरस के हुए जब आप 40 बरस के हुए तो आपको नबूवत का शर्फ मिला। आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाया। हुँ? और आप पर क्या किया? कुरान उतारा। आप अल्लाह के हुक्मों पर चलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अल्लाह के हुक्मों पर चलते थे। अल्लाह की बातों को पूरा करते थे और सबको अल्लाह की बातें बताते थे। देखिए नबी का काम क्या होता है कि जो अल्लाह ने उन्हें बताया, जो पैगामात दिए, जो अहकाम दिए, वो आम लोगों तक पहुँचाना। है ना? नबी का काम यही होता है। तो फिर आप अच्छे लोग आपकी बात मानते गए, मोमिन कहलाए और आपके साथ हो गए। देखो, यहाँ पर ये बात भी गौर करने जैसी है कि मोमिन कौन होता है? मोमिन होने के लिए सिर्फ़ ये ज़रूरी नहीं कि मुसलमान होना, है ना? तो मोमिन वो होता है जो जो मतलब नबी की बातों को मानता है, उस पर चलता है, उसको फ़ॉलो करता है। सिर्फ़ मुसलमान होना ये इतना काफ़ी नहीं है मोमिन होने के लिए। तो देखिए ये बात भी यहाँ पर ज़हन में रखने जैसी है। अच्छे लोग आपकी बात मानते गए और मोमिन कहलाते गए और आपके साथ हो गए। उस वक़्त है ना अरब में कैसा माहौल था? वहाँ वहाँ पर काफ़िर लोग भी थे, बुतों की पूजा हुआ करती थी, है ना? इस्लाम का तब बोलबाला नहीं था। ये आहिस्ता-आहिस्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, आपको नबूवत मिलने के बाद इस्लाम फैल गया। तो उसी तरीके से देखिए कि आपकी बात न मानने वाले काफिर कहलाए। जो आपकी बात माने और उस पर अमल करे वो मोमिन हो गए और फिर जो बात न माने वो क्या कहलाए? काफिर कहलाए। जो नबी की बात को नहीं मानता है तो वो क्या कहलाता है? काफिर कहलाता है। क्यों? तो नबी क्या करते हैं? अल्लाह के हुक्मों को हम बंदों तक पहुँचाते हैं। तो नबी की बात यानी कौन-सी बात हो गई? अल्लाह की बात हो गई। तो अल्लाह की बात पर अगर जो अमल नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा? काफिर कहलाएगा। तो फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न मानते थे वो क्या कहलाएँगे? काफ़िर कहलाएँगे। काफ़िर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। फिर देखिए, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने, दीन पर चले, वो आपसे मिल गए, वो आपके साथ हो गए और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को न माने वो क्या कहलाए? काफ़िर और जो काफ़िर क्या कर रहे थे फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मन हो गए वो और आपके साथियों के भी दुश्मन हो गए। देखिए, है ना? वो दौर कैसा दौर था? अरब में उस वक़्त जहालत बहुत आम थी। तो जो नबी की बात को जो न मानते थे, वो क्या करते थे? नबी के दुश्मन हो गए और नबी के साथ-साथ उसके भी दुश्मन हो गए कि जो नबी के साथ है ना? जो नबी के साथ थे, जो इस्लाम लाए, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको भी वो क्या करते थे? तकालीफ देते थे। नबी को भी देते थे और जो नबी के साथ है, उन लोगों को भी क्या करते थे वो? तकलीफ देते थे।
फिर देखिए आपको सताने लगे, फिर वो क्या करने लगे इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे, आपके साथियों को भी सताने लगे, आपके साथियों को भी सताने लगे, जो इस्लाम कबूल किए, एक तो पहले वो दुश्मन हो गए किसके आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाँ? और उसके साथ-साथ जो इस्लाम लाए उनको भी क्या करने लगे, वो सताने लगे, कौन? काफ़िर लोग। प्यारे नबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अपना काम करते रहे मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया उनकी अज़ियतों से उनकी तकालीफ से डर कर उन्होंने अपना काम छोड़ा क्या नहीं छोड़ा वो क्या करने लगे दीन की तबलीग में लग गए और ये तकालीफ देने के बावजूद भी वो क्या करते रहे अपने काम में लगे रहे अल्लाह की बातें लोगों को बताते रहे आखिर अल्लाह की मदद आई फिर देखिए ऐसे तकालीफ के वक्त में फिर क्या हो गया आखिर अल्लाह की मदद आ गई कहते हैं ना सब्र के साथ अल्लाह की मदद होती है बुरे लोगों का जोर टूटा अब यहाँ पर ध्यान दे जोर टूटना यानी क्या कि कमजोर पड़ना बुरे लोगों का जोर टूट गया यानी वो कमजोर पड़ गए है ना अल्लाह की जब मदद आ गई तो हर एक का वक्त आना है ना तो जब अल्लाह की मदद आ गई तो बुरे लोगों का जोर टूट गया और अरब अरब के सारे लोग मुसलमान हो गए और ऐसा वक्त आ गया कि अरब के सारे लोग क्या हो गए मुसलमान हो गए जो काफिर थे बुत परस्त थे बुतों की पूजा करते थे वो सब क्या हो गए एक वक्त ऐसा आया कि सब लोग मुसलमान हो गए कोई काफिर नहीं रहा कोई भी काफिर नहीं रहा कोई भी बुतों की पूजा करने वाला नहीं रहा काफिर यानी क्या काफिर की डेफिनेशन क्या कहा मैंने आपको कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान या अहकाम को न मानते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका फरमान सुनाते थे अल्लाह का तो फिर इनडायरेक्ट क्या हो गया कि जो नबी की मुखालिफत करता था अल्लाह की मुखालिफत करता था वो क्या हो गया काफिर हो गए तो काफिर की डेफिनेशन याद रखना है आपने सबका दीन इस्लाम हो गया और एक ऐसा वक्त आ गया अल्लाह की मदद के बाद कि सारे लोग मुसलमान हो गए दीन सबका दीन इस्लाम हो गया सलाम हो प्यारे नबी पर दरूद हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहाँ पर देखिए आपका ये सबक मुकम्मल हो गया ना मुश्किल कोई नहीं है सब इजी है सब कोशिश करे कि अच्छे से सबक को समझे और इसमें जो सवालात के जवाबात आने हैं आप सभी क्या करेंगे उसके आंसर्स अच्छे से देंगे इंशाल्लाह जो हार्ड है उसके मीनिंग भी याद करना जरूरी है चलिए फिर हम दुआ पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही व सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुबहानक रब्बि रब्बि सुबहानक रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू